Hello everyone, welcome back to my YouTube channel, My Classroom with Prema Ma'am. आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 NCERT साइंस सब्जेक्ट बॉडी मूवमेंट्स पार्ट 2. Students, before we move towards today's video, let's have a quick revision of what we have studied in the last video. Okay? So we have studied about musculoskeletal system. In that we have talked about bones, cartilage, joints and muscles. बोन्स का हमने फर्दर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोन्स पढ़े, जिसमें पहला हमने पढ़ा स्कल. स्कल इज प्रोटेक्टिंग आवर ब्रेन, राइट. सेकेंड वी हैव स्टडीड अबाउट रिब केज. इट इज प्रोटेक्टिंग बोथ आवर lungs as well as the heart. The third is the backbone, which is protecting our spinal cord. The fourth we have studied is pelvis, which is protecting the internal organs which are below the stomach. We also studied few other bones like shoulder bone, carpals and tarsal, right? Secondly, we have spoken about cartilage. Cartilage में हमने पढ़ा कि cartilage कहाँ present है, at the tip of the nose, okay, and the upper ear, and also in the tips of the long bones. Then next we have studied about joints. Joints को हमने दो में divide किया, movable joints and immovable joints. Movable joints में हमने main 3 types पढ़े. Ball and socket joint, which is present in the shoulder, in the hip, okay. Second, hinge joint, present in the knee as well as elbow. And the third example we have studied is the pivot joint, which is present in our neck. The second type of joint, which is immovable joint, is also called as fixed joint, which is present in our skull except the lower jaw. Lastly, we have studied about muscles. तो muscles कहाँ हैं? Throughout our body muscles is there, right? हाँ, तो हमने उसका functions भी पढ़ा, how the muscles are working. So students, we all have studied about all these things in the last video. I will continue this chapter in this video. So stay tuned and get ready with your paper and pen. Let's start. In this video, I will be talking about the gait of animals. What do you mean by gait? Gait means the way that somebody or something walks. We have studied about muscles and bones. But students, are muscles and bones always required for movement? How do other animals move? Do all animals have bones? We will find the answers for all this question. Let us study the manner of movement, that is the gait of some animals like earthworm, snail, cockroaches, birds, fish and snakes. Body of earthworm is made up of many rings which are joined end to end. पूरे रिंग जैसी रहती है उनकी बॉडी, ओके. उनकी बॉडी में कोई भी बोन्स नहीं होती है, ओके. earthworm does not have bones. So what does it have? It have only muscles, okay. तो muscles will help them to extend and shorten the body. तो इस muscles की help की वजह से ही earthworm movement कर पाते हैं. तो कैसे करते हैं movement? During movement, earthworm first extends the front part of the body, okay. जो उनकी बॉडी का जो फ्रंट पार्ट है उसको वो क्या करते हैं, पहले एक्सटेंड करते हैं, क्योंकि मसल्स है ना, सो मसल्स एक्सटेंड हो सकती हैं, तो वो उन फ्रंट बॉडी पार्ट को एक्सटेंड करते हैं. जबकि जो उसका रेयर पोर्शन रहता है, जो उनका रिमेनिंग पोर्शन रहता है, वो अपने रेयर पोर्शन को ग्राउंड में फिक्स कर देते हैं, ओके. ये सबसे फर्स्ट स्टेप है. क्या है? दे विल फर्स्ट एक्सटेंड द फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी कीपिंग द रेयर पोर्शन फिक्स टू द ग्राउंड, ओके. अब ये फिक्स कैसे रहेगा ग्राउंड में? इफ़ यू क्लोजली सी दिस पिक्चर यू कैन सी स्मॉल hair like projections, yes or no?
हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स है, ये छोटे छोटे जो कि बहुत सारे दिख रहे हैं. सो दीज आर कॉल्ड एज टाइनी ब्रिस्टल्स. दे आर कॉल्ड एज ब्रिस्टल्स. ये ब्रिस्टल्स मसल से कनेक्टेड रहता है. ओके, तो ये ब्रिस्टल हेल्प करता है अर्थवॉर्म को एक अच्छा ग्रिप बनाए रखने के लिए ग्राउंड में. ओके, तो ये फर्स्ट स्टेप हो गया हमारा. सेकेंड, अर्थवॉर्म क्या करेंगे? देन दे विल फिक्स द फ्रंट पार्ट. दे विल फिक्स द फ्रंट पार्ट और जो रेयर पार्ट है उसको रिलीज करते हुए पुल करेंगे. ओके, दे विल पुल द रेयर पार्ट टूवर्ड्स द हेड. ओके, इस तरीके से वो छोटा छोटा डिस्टेंस आगे की तरफ मूव कर पाते हैं. ओके स्टूडेंट्स, सो रिपीटिंग सच मसल्स एक्सपेंशंस एंड कॉन्ट्रैक्शंस हेल्प द अर्थवॉर्म मूव थ्रू द सॉइल. इसमें मसल्स हो गई और ब्रिस्टल्स, ये दोनों ही बहुत इम्पॉर्टेंट काम कर रहे हैं अर्थवॉर्म को मूव करने देने के लिए. ओके, सो यू नो अर्थवॉर्म इज नोन एज फार्मर्स फ्रेंड. वाई? सी, अर्थवॉर्म जब सॉइल में मूव करता है तो वो क्या करता है? अर्थवॉर्म अपना खाना भी सॉइल के अंदर से ही ढूंढता है. यस और नो? So its body then throw away the undigested part of the material also in the soil itself. जो भी वो खा रहा है, जो undigested part है, उसके खाने का जो बचा हुआ undigested part है, जो नहीं डाइजेस्ट हुआ है, वो भी वो सॉइल में ही रिलीज कर रहा है, थ्रो आउट कर रहा है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है बच्चों? सॉइल बहुत ही फर्टाइल हो जाती है, यूजफुल हो जाती है प्लांट्स के लिए. ओके, एंड अर्थवॉर्म ऑल्सो हेल्प टू एरिएट द सॉइल. ओके, क्योंकि वो मूव करते हैं सॉइल में, सो स्पेस बन जाती है. ओके, रूट्स कैन टेक प्रॉपर न्यूट्रिएंट एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल. सो अर्थवॉर्म्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज फार्मर्स फ्रेंड. नाउ वी विल टॉक अबाउट स्नेल. ओके, आप सभी ने स्नेल तो ज़रूर देखा होगा. यस, सो स्नेल अपने साथ में क्या कैरी करता है? एक राउंडेड स्ट्रक्चर कैरी करता है अपने बैक में, राइट? सो दिस इज व्हाट? दिस इज कॉल्ड एज द शेल. ओके, सो व्हाट इज इट एक्चुअली? इट इज द आउटर स्केलेटन. ओके, इट इज द आउटर स्केलेटन ऑफ स्नेल. अभी स्केलेटन सोच के ये नहीं सोचने का कि ये बोन से बना है. ओके स्टूडेंट्स, आउटर स्केलेटन इज नॉट मेड ऑफ बोन्स. किससे बना है? ये बना है कैल्शियम कार्बोनेट का. ओके, ये बना है कैल्शियम कार्बोनेट का. तो हम अभी स्नेल का मूवमेंट पढ़ेंगे कि स्नेल कैसे एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है. तो सबसे पहली बात तो ये शेल जो हमने पढ़ा, ये किसी भी तरीके से हेल्प नहीं करता. शेल किसी भी तरीके से हेल्प नहीं करता है स्नेल को मूव करने के लिए. ओके, तो स्नेल को इस शेल को अपने साथ ड्रैग करके वन प्लेस से अनदर प्लेस ले जाना पड़ता है. ओके, सो इफ़ यू सी इन दिस पिक्चर you can clearly see the main three parts of a snail. These are the tentacles which have eyes on their tips. This is the shell. The use of this shell is to protect the snail from heat and enemies. है ना? जब भी एनिमी लगता है, उसको नियर बाय डर है कि कोई एनिमी है, तो वो क्या करता है? स्नेल अपने आप को इसके अंदर डाल देता है. ये सुनो, अंदर घुस जाता है ना वो शेल के. सो शेल विल गिव प्रोटेक्शन टू स्नेल. देन द थर्ड इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इफ वी आर टॉकिंग अबाउट लोकोमोशन, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट मूवमेंट. ओके, सो दिस इज फूट. तो फूट क्या है? एक मस्कुलर ऑर्गन है. ओके, जो कि कोटेड है लेयर ऑफ म्यूकस से. लेयर ऑफ म्यूकस क्या है बच्चों? एक स्लाइम जैसा है. ओके, एक चिकना जैसे स्टिकी जैसे स्लाइम होती है वैसा है, जिसकी वजह से स्नेल ईजिली मूव कर पाता है फॉरवर्ड, राइट? सो ये जो फूट है ये पूरी तरह से मसल से बना है. इट इज़ मेड अप ऑफ स्ट्रॉन्ग मसल्स. ओके, और ये फूट वेवी मोशन करता है. वेवी मोशन करता है. ओके, वेव्स की तरह मूव करते हुए
स्नेल स्लोली या तो फास्ट मूव करते करते आगे जाता है. ओके, अंडरस्टूड. नेक्स्ट इज कॉकरोच. सो कॉकरोचेस कैन वॉक ऑल्सो, they can climb also, and they can also fly in the air, right? So students, walk करने के लिए उनके पास क्या है? 3 pairs of legs है. 3 pairs of legs मतलब 6 legs है in total. Okay? And उड़ने के लिए क्या चाहिए? Wings चाहिए. So cockroaches also have 2 pairs of wings. That means they have total 4 wings. Other than that, muscles are there which help them to move, okay, from one place to another. The body is covered with a hard outer skeleton which is made up of plates, number of plates which are joined together, and this will help the cockroach to do movement. अभी ये जो outer skeleton है, जो हम बोल रहे हैं एक्सोस्केलेटन बोल सकते हैं या तो आउटर स्केलेटन बोल सकते हैं, ये किससे बना है बच्चों? ये बना है चिटिन का. ओके, वी हैव आल्सो सेड कि कॉकरोचेस के पास 2 पेयर्स ऑफ विंग्स भी होते हैं. सो एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, द विंग्स आर अटैच्ड टू द बॉडी बिहाइंड द हेड. ओके, ये हेड के पीछे आपको दिख रहे हैं ना, विंग्स अटैच्ड है. सो ये विंग्स हेल्प करते हैं कॉकरोचेस को फ्लाई करने के लिए. वी हैव सेड कि उनके पास मसल्स भी है, राइट? सो ये मसल्स भी उनको मूवमेंट में हेल्प करती है. तो कॉकरोचेस हैव 2 टाइप्स ऑफ मसल्स. डिस्टिंक्ट मसल्स विच आर नियर द लेग्स, पर्टिकुलरली लेग्स के पास में जो मसल्स है वो उनको वॉकिंग के लिए हेल्प करेगी. और जो बॉडी में मसल्स हैं, थ्रू आउट द बॉडी जो मसल्स हैं, उनके विंग्स को मूव करने के लिए हेल्प करेगी और कॉकरोच को फ्लाई करवाएगी, राइट? नेक्स्ट आई एम गोइंग टू डिस्कस how birds are doing the movement. We all know birds can fly in the air, walk on the ground, and some birds like ducks and swan also swim in water. Right, students? So, for flying, the birds have streamlined body. What do you mean by streamlined body? The shape of the body is such that it is tapering towards the end. Okay? Just like there is water resistance, there is a force called air resistance also. Okay? मतलब जब बर्ड हवा में उड़ती है, स्काई में उड़ती है, तो उसको अपोजिट फोर्स कौन सा लगता है? हवा का फोर्स लगता है, एयर रेसिस्टेंस लगता है, जिसकी वजह से उसको अपोजिट फोर्स फील होता है. बट दे हैव स्ट्रीमलाइन बॉडी. सो स्ट्रीमलाइन बॉडी हेल्प द बर्ड्स टू ओवरकम दिस एयर रेसिस्टेंस. ओके, सो ये जो बॉडी है उनकी दोनों साइड से क्या है? टेपर होती है, जिसकी वजह से दे कैन इजिली फ्लाई इन द एयर. सेकेंडली, दे हैव hollow bones. Students, what do you mean by hollow bones? See, as you can see in this picture, the bone is completely hollow from inside. That means इसके अंदर कुछ नहीं है. बोन्स कैसी है? खोखली है, अंदर उसके कुछ भी नहीं है, जिसकी वजह से बर्ड्स लाइट होती है वेट में. ओके, उनका वजन कैसा होता है? बहुत ही कम, जिसकी वजह से वो इजिली हवा में उड़ पाती हैं. थर्डली, द फोर लिम्स. The bony parts of the forelimbs are modified into wings. Okay? जो हमारे हाथ है, अपर आर्म, फोर आर्म हम बोलते हैं, लेकिन बर्ड्स में वो क्या है? They are modified into wings. Also they have a strong shoulder bones. Okay? उनकी shoulder bones कैसी है? बहुत strong है. The breast bones are modified to hold the muscles of flight. इट मीन्स जो ब्रेस्ट बोन है बर्ड्स में, वो मसल्स को होल्ड करके रखता है. कौन सी मसल्स को? जो मसल्स उड़ने के लिए बर्ड्स को हेल्प करेगी, उन मसल्स को होल्ड करने का काम ब्रेस्ट बोन करता है. ओके, तो ये मसल्स किसके लिए हेल्पफुल होती है? विंग्स को अप डाउन मूव करने के लिए. ओके, तो ये कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारे बर्ड्स के, जिसकी वजह से बर्ड्स इजिली फ्लाई करती है. स्ट्रीमलाइन बॉडी, हॉलो बोन्स, फोर लिम्स मॉडिफाइड इनटू विंग्स,
strong shoulder bone and the breast bones are modified to hold muscles of flight. Students, ये तो हो गया flying के लिए. For walking, what do they have? They have typical hind limbs. Okay, they have a typical hind limbs which is used for walking and as well as for perching. Okay, then for swimming, what do they have? They have webbed feet. Birds which swim in water like duck, swan, these all have webbed feet which help them to swim in the water. अभी बारी है जल की रानी की. Yes, we will talk about fish. We know fish swims in water, right? So there are some special features in fish which help them to swim. The very first is the shape. If you see a fish, okay, अभी ये fish का diagram आप देख सकते हो. So the body is what? Streamline. Again, just like the body of a bird, fish की body भी कैसी है? Streamline. Streamline का मतलब होता है tapering towards both the ends. दोनों side से taper होएगी, pointed हो जाएगी. Okay? So the middle portion of the body is bigger than comparatively to the head and tail. Okay? So this is called as streamline body, which tapers towards both the ends, right? So this shape of the fish will help the fish to swim in the water. The shape is such that water can flow around it easily. Okay? पानी इसके आजू बाजू से easily निकल सकता है, resistance कम देगा. Okay? पानी resistance कम देगा तो fish easily पानी में swim कर सकती है. Secondly, about the skeleton. The skeleton of the fish is covered with strong muscles. These strong muscles help the fish to swim in the water. Thirdly, fish have fins. Okay, there are two types of fins in fish body. एक तो fins होता है body से attach, जो कि help करता है fish को balancing और डायरेक्शन डिसाइड करने के लिए. एंड सेकेंड टाइप्स ऑफ विंस रहते हैं फिन्स रहते हैं टेल में. ओके, दीज फिन्स हेल्प द फिश टू स्विम इन द वाटर. लेट्स सी फिश कैसे स्विम कर पाती है पानी में. ओके, सो ड्यूरिंग स्विमिंग द मसल्स विच मेक द फर्स्ट पार्ट ऑफ द बॉडी कर्व टू वन साइड. ओके, जो मसल्स फिश के फ्रंट पार्ट में है वो पहले कर्व होती है वन साइड को. ओके, और जिस साइड को वो कर्व हुई है एग्जैक्टली उसके अपोजिट साइड जो टेल की मसल्स है वो टर्न हो जाती है, वो स्विंग हो जाती है. ओके, सो द मसल्स विच मेक द फर्स्ट फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी curves to one side and the tail part swings towards the opposite side. The fish form a curve. Then quickly the body and the tail curve to the other side. अभी जिस डायरेक्शन में कर्व हुए थे उसके अपोजिट डायरेक्शन में वो अभी कर्व हो जाएंगे क्विकली. ओके, दे डू इट वेरी फास्ट. सो दिस मेक अ जर्क एंड पुशेस द बॉडी फॉरवर्ड. अब ये क्विक मूवमेंट की वजह से क्या होता है, एक झटका लगता है और बॉडी जो फिश की बॉडी है वो आगे की तरफ पुश हो जाती है. तो अ सीरीज ऑफ सच जर्क्स विल मेक द फिश स्विम अहेड. ओके स्टूडेंट्स, also the fins of the tail is playing a major role here. Okay, they are also helping the fish to swim in the water. Now students, I am going to talk about the movement of snakes. So snakes के movement को बच्चों हम क्या बोलेंगे, slither. Okay, what do we say snake movement? We say it slither. What do you mean by slither? Slither means to move by sliding from side to side along the ground. Okay, जैसे snake कैसे move करता है, हमारा side to side move करता है ना, slide करता है. Okay, ground में, तो उसको हम बोलते हैं slither. So the movement of snake is called as slither. Okay,
अभी ये स्लिथर करने के लिए, स्नेक को मूव करने के लिए उनकी बॉडी में क्या क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल दे हैव अ लॉन्ग बैकबोन. ओके, दे हैव अ लॉन्ग बैकबोन. सेकेंडली, they have very thin muscles and many. Okay, so they have many thin muscles. उनकी muscles कैसी है? एकदम पतली हैं और बहुत दूर दूर हैं. They are far apart, but सारी ही muscles आपस में एक दूसरे से connect होती हैं. Then muscles also interconnect the backbone, ribs and the स्किन. ओके, मसल्स आपस में बैकबोन, रिब्स और स्किन को भी कनेक्ट करती है, इंटरकनेक्ट करती है. ओके, नाउ वी विल सी हाउ इज द स्नेक स्लिथरिंग ऑन द ग्राउंड. तो बच्चों, स्नेक को मूव करने के लिए स्नेक क्या करता है? अपनी बॉडी में कर्व्स बनाता है. ओके, अपनी बॉडी को कर्व करता है और ऐसे बहुत सारे लूप बनाता है. तो यही जो लूप्स हैं ये स्नेक को फॉरवर्ड मूव करने के लिए हेल्प करते हैं. ईच लूप ऑफ द स्नेक गिव इट अ फॉरवर्ड पुश. आगे पुश करता है वो. कैसे? बाय प्रेसिंग अगेंस्ट द ग्राउंड. ओके, ग्राउंड के अगेंस्ट मतलब ग्राउंड को पुश करते हुए वो आगे बढ़ता है. ओके, इट प्रेस अगेंस्ट द ग्राउंड एंड पुश फॉरवर्ड. सिंस उनकी बॉडी कैसी है? बहुत लंबी है. दे हैव अ लॉन्ग बॉडी, राइट? सो दे कैन मेक मैनी लूप्स और हर एक लूप उनको आगे पुश करेगा फॉरवर्ड मूव करने के लिए. सो दैट्स द रीजन द स्नेक मूव्स वेरी फास्ट. जितनी लंबी बॉडी उतनी ज़्यादा लूप्स और उतना ज़्यादा पुश फॉरवर्ड करने का फोर्स मिलेगा, जिसकी वजह से स्नेक्स आगे फॉरवर्ड मूव कर सकते हैं, दैट टू वेरी फास्ट. And they do not move in a straight line. They are not going to move in a straight line because they are forming these loops, right? So उनका movement क्या है? Slither है. Okay? वो लोग साइड बाई साइड ऐसे स्लाइड करते हुए ही ग्राउंड में आगे बढ़ सकते हैं. So students, I hope you have understood the gait of all the animals which I have discussed, like the earthworm, snail, cockroach, birds, fish and the snakes. So students, this was all about body movements. I hope बच्चे लोग, आप लोग अच्छे से नरिशिंग फूड खाओ. Keep your muscles healthy. Take enough of calcium, potassium, vitamin C, phosphorus and keep your muscles healthy. Also take good quantity of calcium and vitamin D in your diet to keep your bones also healthy. If you like the video, do like and share it with your friends. And please subscribe to my YouTube channel, My Classroom with Prema Ma'am. Thanks for watching.